नमस्कार, मैं प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं पाताल लोक सीजन 2, इसलिए हम लोग भी दो हैं। Hi, I'm Abira and we will be taking over because it's double dhamaka. Patal Lok 2 with the two actors and the two anchors that you will be dealing with. Wow. Amazing combination. Right. Let's go back to Patal Lok first. Ji. You know, when a sequel is coming, you know, after so long, my problem was I have to go back for a recap because I have forgotten a lot of things. And what happens to actors when you all go back and you have to go back into the same character, wahi same costume, wahi mental isme? Is it usually difficult for you and him? I'm not talking about just Patal Lok, but any character when you go back to it, is it difficult? Not difficult, but Or is it easy? not easy also, because when it's a long gap, 4 years of now, Yeah. not 4 years, because when we started it was a gap of like 2.5 years or some to 2 years, but it's not easy also, and it's not that difficult also, because you know the world, and you don't you don't want to be you know you don't want to revisit that in a sense that if you see that sequel again or the first part again, you might be you might be copying some of the gestures or something like that. I am really afraid of that. But I visited the first season after when I was about to start the season 2, just to revisit some relationships with the people, with Ansari, Sid, my son, and Renu's character and everything. But very briefly, like within 1 hour, I skipped most of the part and just understood. Oh, okay, this is the premise. It just hai. But when you read the season 2, when I read it, I was like, I don't think I needed that, because the story itself went ahead. You know, it's 2.5 years or 2 years passed in their life, and rest is everything is same except रिलेशनशिप थोड़े बेटर हो गए परिवार के साथ, रेणु के साथ, बच्चे के साथ. अंसारी हैज़ मूव्ड ऑन इन हिज ऑन लाइफ. और तो मोस्टली आपकी जो प्रिपरेशन है वो शुरू से स्टार्ट होती है. ओके, नाउ दिस इज न्यू वर्ल्ड एंड लेट्स टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर. वो ऑलरेडी आपके दिमाग में है कि हम कहाँ खड़े हैं, हाथीराम कहाँ खड़ा है मेंटली, फिजिकली, यू नो इट. Just first few days, it's always difficult to be there physically, mentally, and that's a great thing that you have an amazing team. People like Sudeep Sharma, Avinash, Arun, you don't have to worry about anything. They won't let go anything wrong. That I know. What about you? I have not had the good fortune of having a season 2 of a character, so I really don't know. I will answer the question hopefully Oh, one day. Patal Lok 3. Patal Lok 3. Maybe. बट मुझे बताइए कि मैं दोनों से ही पूछना चाहूँगा, उसी के सवाल का एक्सटेंशन है कि फिर भी बहुत सारे मैनरिज्म, आप बीच में इतनी सारी फिल्में करते हैं, बहुत सारे मैनरिज्म होते हैं, बोलने का एक तरीका होता है, चलने का एक तरीका होता है. जब पाताल लोक 1 देख रहा था मैं, तो मुझे आप पे तरस आना शुरू हो जाता था, है ना. एंड अरे यार, ये कितना बेचारा मेहनती आदमी है और कैसे एक जगह लंगड़ा के भी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं. तो फिर भी कहीं ना कहीं उसको, अब जैसे हम यहाँ से सवाल पूछ के निकलेंगे, हमें याद नहीं रहेगा कि हमने क्या सवाल आपसे पूछे. Same. तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ. बिल्कुल सही कह रहे हो. तो उस तरह वो न्यूएंसेस और इतने सारे कैरेक्टर्स बीच में प्ले कर चुके होते हो आप, फिर भी कहीं किसी कैरेक्टर में, क्योंकि सीक्वल एक अलग चीज है फिल्मों का, बट कहीं टफ होता है. फिर भी आपसे शुरू कर देते हैं. मतलब एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर, मतलब एक ही कैरेक्टर को याद रखना अगर आपको है, इतना गैप हो जाता है, तो उसके बाद कई बार बहुत सारे एक्टर्स आपने कहा आप देखना नहीं चाहते थे, है ना, लेकिन अगर नहीं देखते तो भी बनता नहीं शायद. सीजन 2, सीजन 1 को वापस. अच्छा, सीजन 1 को वापस नहीं देखता तो हाँ, नहीं, आई थिंक नहीं भी देखता तब भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था. बट वो क्या होता है ना कि आप कोशिश कर लेते हो कि सब हथियार अपना लो ताकि आप कहीं से रॉन्ग ना जाओ. राइट. और वो जैसे मैंने बताया, 9 एपिसोड को मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे में देख चुका था, बिकॉज आई जस्ट लुकिंग सम फ्यू फ्रैक्शंस ऑफ इट. हाँ, कि अच्छा उस वक्त ये हुआ था, तो अच्छा इसका ये इम्पैक्ट वहां निकला था. ठीक है, इस तरह के माहौल में हम एंड पे कहाँ खत्म किया, अंसारी को कहाँ छोड़ा, वो मोमेंट्स बस एक बार आपके दिमाग में दोबारा आ जाते हैं और आप वो स्क्रिप्ट पढ़ ही रहे होते हो. सीजन 2 की स्क्रिप्ट चल रही है, तो उसी दौरान अच्छा ये मोमेंट में अगर मैं एक बार वो देखूं क्या किया था जब वो पहली बार मुझसे मिला था,
तो वो एक बार वैसे गया और देख लिया, अच्छा ठीक है। मुझे लगता है अगर नहीं भी देखता तो भी खो ही जाता वो, क्योंकि आपकी टीम आपको रिमाइंड करवा देती है नहीं ये उस वक्त ये हुआ था, उस वक्त ये हुआ था। पर जहाँ तक शुरुआत की बात है, आप क्योंकि जैसे आपने बोला कि अब यहाँ से निकलेंगे तो आपको सवाल क्या पूछा था याद नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा वक्फा है, यहाँ 15-20 मिनट सब हो गया। आपने वो 6 महीने किया है, तो वो 6 महीने की यादें आपके याद यहाँ की बजाय ना आपकी बॉडी मेमोरी में आ गई जी। आपका शरीर रिस्पॉन्ड करने लगता है 2 दिन बाद के ओ नो नो इट्स नॉट राइट। इट्स लाइक बहुत अमेजिंग चीज है ये। प्रोस्थेटिक जब होता है ना चेहरे पे लड़ाई के टाइम पे, फॉर एग्जांपल एक एक्शन सीक्वेंस और वो 3 दिन चलने वाला है, तो आपकी एक चोट लग रही है कहीं, तो जब पहले दिन लगता है आपको उस बात का एहसास नहीं होता है। सेकंड डे द मोमेंट जो आपका जो भी प्रोस्थेटिक का डिजाइनर है आपका, वो एक ब्रश चलाएगा ना, अगर वो आधी इंच भी आधी सेंटीमीटर भी इधर है ना, आपका बॉडी बताना शुरू कर देगा नहीं गलत है। कल मैं यहाँ वो फील नहीं कर रहा था, कल मैं यहां फील कर रहा था और यहां नहीं कर रहा था। आपका शरीर आपको बताना शुरू करता है कि ये चोट सही जगह पे नहीं है बिना देखे। सो दैट्स हाउ बॉडी मेमोरी वर्क्स। तो जब हाथीराम दोबारा जब आता है तो वही मैं कहता हूं पहला 1 दिन 2 दिन हो सकता है कि मुश्किल हो, बट योर बॉडी विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग द मोमेंट यू गेट दैट यूनिफॉर्म, यू टॉक टू द सेम पीपल, यू उस पुलिस स्टेशन में दोबारा पहुंचना। आई स्टिल रिमेंबर पहला दिन जब शुरुआत थी, बॉम्बे से स्टार्ट किया था, फर्स्ट डे वाज पुलिस स्टेशन ओनली। आई वाज सो नर्वस, एंशियस, डिडंट स्लीप एट ऑल। The call time was 7 o'clock or 7:30 on location, and then get ready, and 8:30 by 9 roll time. I reached there by 6. अंधेरे मुंह अंधेरे, कोई नहीं है वहाँ, सिर्फ आर्ट डायरेक्शन की टीम है जो सामान रख रही है, वो सब चल रहा है। बच्चन साहब की तरह पहले पहुंच गए। आई वेंट देयर अपनी कुर्सी पे, अंधेरा अंदर भी सेट पे, क्योंकि बॉम्बे में सेट लगाया था इंटीरियर का। आई जस्ट वेंट देयर एंड स्लेप्ट ऑन माई चेयर, उस चेयर पे जिस पे हाथीराम बैठता है। मैं 1 घंटा सोया हूँ वहाँ। एंड देन आई रियलाइज कि हाँ मैं ठीक हूँ अभी। मैं इतना घबराहट में था पहले दिन कि पता नहीं अब कैसे होगा। हाथीराम की जो आत्मा थी वो आपके अंदर आ नहीं, आत्मा का तो पता नहीं, पर मेरी सांस नॉर्मल हो गई कि हाँ अभी मुझे ब्रीदिंग ठीक हो रही है मेरी, तो अब शुरू करते हैं, देखा जाएगा जो होगा। तो आपने फर्स्ट सीजन देखा होगा। बिल्कुल, but it's true, you know what he's saying, because earlier I had so little work that I would do 1 film at a time, and you prepare for that for 2 आपने हिंदी years. बोल रहा था वैसे, हाँ, स्विच हो गया, कोई बात नहीं। एक काम करते थे, तो मतलब उसकी ऐसे प्रेपरेशन होती थी कि 4 साल जैसे वनवास जाते हैं और उसके 4-5 साल बाद एक फिल्म निकल के आएगी। तो ऐसा था, कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि एक, पर ये कोविड के दौरान काफी शेड्यूल्स प्रोडक्शन काफी हिल गए थे। सो one ended up doing 1 schedule and then going to another project for another schedule. But that's when I realized what he was saying, that our body remembers. So I may not remember the questions you asked, but I know that at one point, you know, your hand was like this. एक दिन में while 17 asking. करेंगे तो कैसे याद रहेंगे? No, but it's Exactly. it's how you hold your hands together. I will remember that. I know. I'll remember your body language, you know, the way you're sitting. Ji. I may not remember the questions. So your Right. body remembers things. So once you go back to that character, even if you're playing something else, your body reminds you that that you know this. You know. ऑन अ लाइटर नोट में एक छोटा सा चीज पूछना है। तो आपने कहा ब्रश आदाज भी लगता है तो पता लग जाता है गलत लग गया। आपको कुछ याद है कि इतनी सारी फिल्में होती थी जहाँ पे कंटिन्यूटी जंप होता था, या है ना? बिल्कुल होता है। कि आपको पहले यहाँ चोट लगी तो हाँ, आज next भी हो scene में वो इधर जाता आ आज गई। भी हो चोट? जाता है, आज भी हो जाता है। एक सीन में कोई खड़ा है यहाँ, दूसरे सीन में वो है ही नहीं। हाँ, नहीं वो तो है। चोट तो बहुत छोड़ो। होता था। मैंने देखा बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स जो एक मोल लगाते थे यहाँ पे, हाँ। दूसरे सीन में थोड़ी देर के बाद वो इधर आ हाँ, जाता मस्सा बदल गया है, राइट। कुछ भी होता था। वो अभी भी कई बार हो जाता है नासमझी में, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक्शन सीक्वेंस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, अगर आप उनको बैकवर्ड शूट कर रहे हैं ना तो आप फंस गए। अगर आपने शुरुआत ही क्लाइमेक्स से किया तो आपको कितनी चोटें लगी आपको पता नहीं। तो आपको अभी आपने दिखा दिया है कि यहाँ फूटा हुआ, यहाँ फूटा हुआ, यहाँ फूटा हुआ, यहाँ फूटा, वो चोटें कहाँ लगी ये आपको डिजाइन करना पड़ेगा। राइट, तो वो बड़ा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। राइट। But Tilottama, this is for you. You know, we have all been fans of Patalok. We have seen Patalok, and it became such a huge hit. Was it some kind of pressure there when you were given the script of Patalok 2? You know, because he is a star now. You know, and what was it like? What was going on in your head? उसमें एक चीज और ऐड मैं कर देता हूँ। जब आपने फर्स्ट देखा होगा तो फर्स्ट देखने के बाद
पाताल लोक एक ऐसी सीरीज थी, जब आई थी तो उड़ा दिया था उसने सब लोगों को। और चाहे वो एक्शन की बात करें, चाहे उसमें हम जो इमोशन ना, जो गुस्सा, जो कैरेक्टर्स थे, तो आपको जब आपने वो देखा होगा, क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको याद और जो आपको अच्छी लगी कि यार ये इसमें कमाल की चीज़ है और मैं इसका हिस्सा बनने वाली हूँ? No, obviously I didn't know ना when I was watching that I'm going to be a part of No. season 2. जब सेकंड आपने पढ़ा सीजन 2, उस वक्त जब आपको ये याद आया होगा ना कि यार ये मैंने सीरीज देखी थी उस वक्त, course. और मुझे इसका ये कैरेक्टर अच्छा लगा या इसकी मुझे ये बात अच्छी लगी। There were so many things. I'm a huge fan of the show. So, and it was incredible to get a call to be a part of this show. It was incredible to receive a script like that, which you can't stop reading. You know, it was absolutely like it blew my mind open that this is all there in the script. You know, so it was really like a out of body experience. And she was asking, was there a pressure? Yeah. See the pressure, like even I've been asked this question a lot because I think I came into the OTT world very late, you know, so, But this year you have two, I think, CA Topper and... Last Stories, Yeah. But the Oh, thing, that story was brilliant. but I feel like because I came in late, so I'm part of season 2 of many amazing shows. And the thing with that is, you don't have to be smart in life, I feel. You need to make good friends, you know. Like you don't need to know everything, but you should know who to ask, you know, if you want to know something. So I think maybe this is the jam that, you know, you do what you have to do. You celebrate the artists and the shows that you really like, khule aam, whether you are part of it or not, because we are a community, you know. And when you celebrate work that you really like genuinely, I think I have openly admired, and I think maybe something somewhere, a power hears that, and if it's genuine enough, you know, they take you along for the next one. But the pressure was not something extra because it was a season 2 of a successful show. The pressure always is to be able to repay the trust that the director has put on you, you know, and by giving you that part. That's always the pressure, no matter whether it's season 2, season 1, of anything. And that was the thing, that this is such a good team. Yeah. This is such a great team that I want to be a part of this team, you know, in the most positive way that I can, beyond the work, not just the work, because I feel it's a longer journey. We have lots to learn, you know, together. Absolutely. Okay, let me come back to Patal Lok 1. Patal Lok 1, when it released, it blew everybody's mind. Like you said, we loved it, everybody loved it, and the kind of shows now we have access to all over the world. We are watching so many different kind of shows. We had Golden Globes today, and the kind of content that is coming out. So Patal Lok was that level. How did life change for you post Patal Lok? Oh, everything changed. From let me just elaborate this question. I just don't want to know how life changed for you, but people's attitude towards you changed. How they talk to you, how industry's attitude, how they talk to you, how they meet you. You know how it is. But I liked him in Command only. मैंने कहा यार क्या कमाल लड़का है ये. Yeah, that was something else. I Sir, think the लड़का बोला eyes आपको worked देखिए. in Commando. The eyes were very scary. जदीप आदमी नहीं बोला, मैं लड़का बोला मैंने. हाँ, I know. But tell me, how did that equation change? You saw it changing. कैसे हुआ वो? I think वो लाजमी है ना, वो होगा. बिल्कुल, but आप मुझे होगा, बताइए हर कैसे? एक का एटीट्यूड नहीं, वो हर एक का नजरिया बदलता है आपके लिए. जब आपका काम लोगों तक पहुंचता है, ऐसा नहीं था कि उससे पहले नहीं गया था, बट शायद उतने मासेस को जाके आपने हिट नहीं किया था उस वक्त. पर जब वो इस तरह से रिसीव होता है कि now everybody is talking about that, you feel grateful, first of all, that you were part of something that became so important for the people. Either it's for entertainment or people like us, you know, to see something and get inspired by it. Because when somebody says this to me, "Ke, sir, I became an actor because of you," that feels amazing, and suddenly feels you feel pressured, because now somehow he's giving you the responsibility
कि अगर मेरा कुछ गलत हुआ तो आपकी वजह से होगा. सो आई फील वेरी प्रेशराइज्ड बाय दैट स्टेटमेंट, बट दैट्स व्हाट वी सेड इट टू अदर पीपल ऑल्सो कि सर आपको देख के हमने बहुत कुछ सीखा है. बट मुझे लगता है वो होना लाजमी है कि आपको लोग अलग तरीके से बात करते हैं, आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट इन योर इंडस्ट्री. पहले जब वो होता था कि कास्टिंग डायरेक्टर, जस्ट वेरी स्मॉल एग्जांपल, कि कास्टिंग डायरेक्टर आपको बोलता है कि भाई कैसा पार्ट आया है, वी वांट टू टेस्ट यू और समथिंग लाइक, बट वेरी पोलाइटली, ऐसा नहीं किया. बट नाउ अगर वो उनमें से कोई फ़ोन करता है या जो भी बात होती है, वो सीधा ही कि भाई वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ लेके बैठे हुए हैं और उन्होंने आपको सोच के लिखा है, इट फील्स डिफरेंट. बट देन यू फील रिस्पॉन्सिबल टू इट ऑल्सो, बिकॉज अभी किसी ने आपके नाम से ही स्क्रिप्ट लिख दी है और उसने नाम भी चेंज नहीं किया है. उसमें लिखा हुआ है जयदीप अहलावत, बाद में देखेंगे क्या नाम रखना है. तो इट फील्स अमेजिंग. एंड बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज लाइक कि सब आपके साथ काम करना चाहते हैं. वो बहुत ग्रेटफुल वाली फीलिंग होती है कि थैंक गॉड ये बड़ी हुआ. तारीफें आपकी लोगों ने की है जाने जान के टाइम पे, चाहे हंसल हो या ये करीना हो, सब लोगों ने बहुत. लेकिन जो आप दोनों से सवाल है मेरा कि जैसे आपको आगे लोग बोलते हैं कि हम आपको देख के इंस्पायर हुए या आपके जैसे हम बनना चाहते हैं, जी. आपने कभी किसी को बोला है? हाँ, हमने जब हम पढ़ रहे थे तो ऐसे बहुत सारे लोग हमसे मिलने आए थे जो बड़े बड़े कमक नाम हैं, जो नसीर भाई से लेके ओमपुरी साहब से लेके इरफान भाई, और ये सब लोग इस शूट में आ रहे थे. तो हमने बहुतों को बोला कि सर आपको देख के सबसे पहला कौन था जिसको याद है? सॉरी, सबसे पहला कौन था जिसको बोला होगा? जहां तक मुझे याद है ये नहीं बोला कि आप जैसा बनना है. हाँ, मतलब पर ये जो पहली बार ये निकला था कि सर आपको देख के हमने सिनेमा सीखा या एक्टिंग सीखी, वो नसीर भाई थे. क्योंकि वो जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब वो सेकंड ईयर की क्लास लेने के लिए आए थे. तो वी वर लाइक ऐसे देख रहे थे उनको कि कौन भगवान पहुंच गए इस इंस्टीट्यूट के अंदर, बिकॉज नसीर भाई का ऑरा ही ऐसा है. वो जब बैठते हैं क्लास में, जब वो जैसे वो बात कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, आप बस देखते रहते. और हम एक दो थोड़े से थैंकफुल लोग थे जिनको अपने सीनियर्स के साथ बैठने का मौका मिल गया था. पता नहीं कैसे, कुछ तो जुगाड़ हो गया था. पर हम उनको ऐसे बस घूरते रहते थे कि अरे क्या बोले जा रहे हैं, क्या बोले. तो उनको बोला था कि सर आपसे आपका काम देख देख के इतना करो, जो कि सच भी है. इन लोगों का काम देख के बहुत, ना सिर्फ मेरे, पता नहीं कितने लाखों लोगों ने उनका काम देख के सीखा होगा. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनसे लेके इरफान भाई तक, मनोज भाई तक, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तब्बू हैं. तो या पर आपसे कोई वही बात कहता तो आपको लगता कि ओ राइट. अब मुझे समझ में आता है कि जब आप ये बात किसी को बोल देते हो उसका कैसा लगता होगा. उसको लगता है कि अरे यार मेरी वजह से क्यों, मैंने कुछ नहीं किया है. चलो तुम आप. मेरी पहली फिल्म मॉनसून वेडिंग में नसीर साहब ने हमारा एक वर्कशॉप लिया था सब एक्टर्स के साथ. तो और हम कभी फिल्म स्कूल गए नहीं थे. और तो पहली दिन वर्कशॉप में बहुत कुछ एक्सरसाइजेज, मेमोरी एक्सरसाइजेज करवाई उन्होंने कि कंघी लो, इमेजिनेशन वाली कंघी लो, अच्छा चलो बाल कोम करो, फिर अभी कंघी को रख दो, अभी इमेजिनरी कंघी के साथ बाल कोम करो. फील द वेट ऑफ द कॉम. फील द वेट ऑफ द कॉम. वो एक्सरसाइज करते हुए ही मुझे जो एहसास कमतरी का फीलिंग जो आया मेरे में, एहसास कमतरी, जी जी ऐसे सीख लिया मैंने, क्योंकि ये मेरी मेन क्वालिटी है लाइफ में, लो सेल्फ एस्टीम. तो इसीलिए मैंने इसको उर्दू भी सीख के रखा है. बहुत जी बिल्कुल कहा इन्होंने. उनकी प्रेजेंस में ना आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता है. राइट. उनको स्टेज पे देख लो, उनको कैमरे के सामने देख लो, आपको मैं तो उनको देख के भाग जाती हूँ. हाँ? उनको देख के भाग जाती हूँ. हाँ बहुत. मैं अभी उनसे कहीं मिला था अमृतसर में इसी साल, और मैंने पहले अपने एक दोस्त से पूछा कि मूड ठीक है, क्योंकि ऐसा हुआ है हमारे साथ क्लास के टाइम पे या कहीं हम एक बार क्रिकेट खेल रहे थे एफटीआई में, और सब अच्छा था. सडनली उनका किसी बात पे वो फिरा, किसी ने कुछ तो बोला, वो पिनक गए. और हमारी जो हालत खराब हुई ना कि बस आज किसी को डांट ना पड़े. मैंने यही पूछा कि मैं भाई, और मैं बहुत सालों बाद उनसे मिल रहा था, तो मैंने उससे यही पूछा मूड ठीक है? हाँ एकदम सही, एकदम सही. मैंने जाके मैं अकेली नहीं हूँ जो ऐसा सोचता है. नहीं, एनएसडी में जब क्लास लेने वो जाते हैं तो आप जो वहाँ स्टूडेंट्स होते हैं उनसे आप देखो, पूछो उनसे. अरे वो आपको बताएंगे सब. वो उनके साथ वो डरते भी हैं और प्यार भी उतना ही करते हैं. हाँ ये तो है. तो मेरे पहले दिन वर्कशॉप के बाद मुझे ऐसा बुखार चढ़ा
कि मैं वर्कशॉप में आ ही नहीं पाई उसके बाद क्योंकि मुझे लगा ये तो हमसे होगा ही नहीं। और ये पहली फिल्म थी और मैंडेटरी था कि मीरा जबकि नायर आप ने बाहर से पढ़ के आए होंगे। नहीं बाहर से पढ़ के नहीं आए थे तब तक नहीं आए, जी, बाद में नहीं, आए, नहीं, सॉरी, बिल्कुल, कुछ राइट, हाँ, तो 2001 की बात है तो जी मॉनसून राइट। जी 2000 में शूटिंग हुई थी, तो उस दौरान मतलब एक्टिंग का कुछ पता ही नहीं था हमें। उसके और- बाद आप गई थी ना? जी बिल्कुल। उसके बाद आप गई। तो नसीर हमें मीरा ने कहा था कि ये वर्कशॉप अगर नहीं करेंगे तो आप फिल्म में एक्टिंग नहीं कर सकते, ये मैंडेटरी है सबके लिए। और मेरा पहले दिन के बाद ही बुखार चढ़ गया और हम आ ही नहीं पाए वर्कशॉप के लिए। और तो मुझे बहुत ही डर था कि क्या होने वाला है। एंड देन आई गॉट अ कॉल कि प्लीज़ डोंट लूज वेट बट यू कैन स्टिल डू द फिल्म। बट आई वॉज सो नर्वस दैट आई डिडंट डू नसीर्स वर्कशॉप, सो आई विल नॉट बी एबल टू एक्ट। एंड after 2 days of being on set, Nasir and Kulbhushan जी, एक ऐसा सीन था उस फिल्म में where my character is dressing up in front of a mirror. वो एक अमीर घर में काम करती है और उनके जो ज्वेलरी है वो पड़े हुए थे, और तो वो उसे ट्राई करती है कि कैसा लगता है ऐसे गहना पहनने में, तो कैसा लगता होगा। तो वो सीन जब कर रही थी वो काफ़ी टेक्निकल था क्योंकि मिरर था और उसमें मतलब मैंने कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया था कि मिरर शॉट्स आर सो टेक्निकल, यू कैमरा हैव खुद टू नजर आएगा। प्रिटेंड, कैमरा Yeah, दिख yeah. जाएगा मिरर में, सो यू हैव टू प्रिटेंड कि मिरर कहीं और है जहाँ मिरर एक्चुअली नहीं है, और आप वो मिरर को देखते देखते आप ड्रेस करें। तो पहली बार शॉट तो मैंने कर लिया, पहले ये लगाया वो लगा, भूल भी गई कौन सा पहले Continuity लगाया। jump. फिर बोला कि दूसरा टेक करो, जो किया था वही करो, और अब मिरर में देखो मत, अब मिरर के बिना करो। तो कुछ तो मुझे लगा कि ये वर्कशॉप इमेजिनेशन एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए कर लेनी चाहिए थी मुझे, इमेजिनेशन एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए थी मुझे, और अब ये कुछ टूटने वाला है। बट एंड आई स्टार्टेड क्राइंग आफ्टर, एंड नसीर एंड कुलभूषण जी saw me and they were so comforting. They were so comforting. I said I should have gone to acting school. I should not have done the film before going to acting school. And Nasir Saab told me that I will take you to NSD once the shoot is over, but you don't need to go to acting school. Please just be and enjoy and just listen and just respond. I said, what about the imagination exercises that I missed? Is there a short course to the imagination? There's no shortcut, but you please walk your own path. And they never intimidated me. So I have not seen the strict side of Nasir Saab that I hear. I have only seen Lucky the you. gentleness and a nurturing That's so side. sweet. Yeah. नो नो यही तो खूबसूरती है उनमें कि वो आपको ही आप वो नहीं करेंगे शायद, आप रहते हो, क्योंकि एक रुतबा इतना बड़ा है ना। आज भी मैं बता रहा हूँ, इतने सालों काम करते हो कि आज उनकी वर्कशॉप हो जाए ना, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ दोबारा बुखार चढ़ जाए मुझे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। Yeah. But That's मेरी so- my you body feel couldn't like take you it. know nothing. You know nothing. My God. Yeah. क्या? इशारा हो गया उधर से, हाँ, है ना? मुझे भी। बट मैं सिर्फ बट मुझे एक चीज जाते जाते मैं पूछना चाहूंगा कि अभी जो सीरीज है और जो फर्स्ट जो सीजन था, मुझे लग रहा है कि जो एक रॉनेस और एक थोड़ा सा वो लिंगो उधर का अभी थोड़ा सा मेट्रो टाइप फील मुझे आ रहा था ट्रेलर देखने के बाद। जो वो एक गांव का छोटा दिल्ली के आसपास के इलाके का जो वो था वो थोड़ा नहीं है। तो ऐसा आपको भी फील हो रहा है? मुझे ही लग रहा है। नहीं, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा है नहीं ना जी। कहानी, बहुत थोड़ी सी और आगे अब चली सिर्फ आप रह गए हैं उस लिंगो के साथ। हाँ, मैं रह गया उस लिंगो के साथ, क्योंकि दिल्ली से चित्रकूट आना बहुत आसान है, दिल्ली से नागालैंड जाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। तो वो बदलाव दिखाई देगा भाषा में, पहनावे में, खान पान में, लोगों के जीने के अंदाज में, सोशली, पॉलिटिकली, हर तरीके से वो बदलाव दिखाई देगा। इसलिए वो लग रहा है कि ये कहीं किसी और दुनिया में आ गए हैं। राइट। लेकिन कुछ जो कोर है वो अभी भी वही है। पर वही बात है, जब आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होगा किसी जगह पे, और अगर आपकी जगह बदल दी जाए, तो हो सकता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट किसी भी काम ना आए। कोई उसका वो एकदम बेसलेस हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। आपको अगर ऐसी जगह, आपका सिर्फ स्पेस बदलना है जहां आपका जो पावर है उसको किसी और चीज से रिप्लेस कर दिया गया है। राइट। नाउ दैट पावर मीन्स नथिंग, क्योंकि गेम बदल गया है। जी जी जी। तो ये फील जरूर आएगा बहुत सारे किरदारों में जो इधर से उधर जाएंगे। मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आई स्वेयर लास्ट, प्लीज। हम 2 जन कर रहे हैं यार। दो पूछो आप। नहीं तो हम 40 मिनट करते हैं। 2 पूछो आप।
मार रही है मुझे. But I have to ask you this: did you all shoot in Nagaland? Of course. Yeah. Please tell me all about the experience. आपको क्या लगा था, कहाँ शूट करके आए थे? मुझे क्या पता. फिल्म सिटी में. पहाड़ों में. बिल्कुल. Tell me how Nagaland was that में. experience, and you know, shooting with people there, and tell me all about it, because you know, you hardly see representation of Northeast. आई थिंक जहाँ तक So- मैं गलत नहीं हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नागालैंड में प्रॉपर नागालैंड में शूट होने वाला पाताल लोक वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट. Exactly. I just spoke to the So, producer and she told me that. फर्स्ट सीरीज. First series, एवर yeah. लाइक कोई भी First सीरीज ever, वहाँ शूट हुई थी. तो मुझे लगता है कि हम सब थोड़ा सा घबराए हुए थे कि यार पता नहीं कैसा जाएगा, बिकॉज यू डोंट नो द पीपल, यू डोंट नो द टेरेन, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. और लोकली लोग कितना इस बात को समझते हैं कि फिल्म मेकिंग में क्या क्या जरूरतें पड़ने वाले हैं, क्योंकि बेसिक्स पाए जाते हो ना आप, गाड़ियों से लेके, होटल से लेके, खाने से लेके, हर चीज आपको लोकल प्रोडक्शन चाहिए होगा जो बाकी चीजें अरेंज करके दे. आपको शायद बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट चाहिए होंगे जो आप, नाउ यू डोंट हैव एनी आइडिया हाउ दे गोना रिस्पॉन्ड. बट my personal experience, and I'm sure I can say from many people from Patal Lok, it went way smoother than we thought. Like, they are so welcoming in that sense. The only problem was that they are not used to this kind of environment. They are not used to see a film crew or work with them. So if there's a crowd sequence when we have to show the angry mob, they are all laughing because they are having fun of that life. They are like shouting, "ये मजेदार चल रहा है, ये मार दो." So we like, अरे यार, इनको कोई कैसे समझाए कि angry होके भागना है तो angry होके. Now there everybody is laughing and Smiling. like smiling and running. So वो थोड़ा सा time लगा. Otherwise it But you went know, very smooth. On the other hand, because Nagaland is not used to shooting, there's also great innocence to that and a great Yeah. beauty to that. Yes. Because I remember a scene, we were shooting in a village, and at some point, silence was called. Yeah. Now, when you call for silence in a city like Bombay, you have to call for silence at least 10 times before people keep quiet. And still there'll be noise somewhere outside, right? But there, it was the production that made more noise. The people in the village kept quiet immediately. Yeah. Wow. It was such a sense of, like, there's a warmth that is indescribable. Amazing. Indescribable. Like, I'll tell you, we have a person called Anungla on our set, who was, because you're asking about Nagaland, I want to say also this is the greatness of Sudeep and Avinash as makers of this show, that there is no appropriation of Nagaland just to show, you know, a misrepresentation. They got someone called Anungla, who was there as a cultural researcher. So she had the say. Sudeep had Yeah. given her the power to say, if there's anything in our story, anything in the frame that you think is incorrect or manipulative, you have the right to say that this has to go. That's Wow. good. So to That's give Commendable. this kind of power, And she was there for not just for the filming, she was That's there what- from the start, From the Ricky writing. time. कि कॉस्ट्यूम कैसे होंगे, yeah. अगर किसी को कुछ मार्क्स बनाने हैं तो वो कैसे होंगे, सॉन्ग्स क्या होंगे, पावर गेम क्या होता है, Baptist दीवारों पे church क्या लिख के सकते हैं, क्या everything. लिख सकते हो, what are the insignias of a Baptist, you know, and this is her passion for correctly representing Nagaland, right? Now, the same person, I had one day off. So I had just casually told Anungla, कि I want to see a little bit of Nagaland. If there's any suggestion, just drop me a message. कल आप काम पे चले जाओगे, मेरी छुट्टी है. When I woke up in the morning, she had given me 4 options. If you want to do nature, go here. And if you decide to go here, these are the 2 conservationist friends of mine who can come with you. If you want to look at folk art, this is where you should go. These are the friends who would accompany you there because they are folk artists. If you want to explore music, this is the 3rd option. You should go to this place. You love coffee. If you want to visit a plantation or learn of new kind of farming practices in Asia's green village because you love plants, this is where you should go. When I woke up, I realized when I read that message, How much? this is a sense of pride that this is Nagaland. I want you to see Nagaland in all its glory and beauty. Amazing And people. that warmth, I don't know if I would make that effort for someone who came to see my city where I live, you know, because do I not feel that sense of pride?
So it was really something else too. I mean, the friends I've made in Nagaland. Great, great. Yeah. Wow. Okay, last two सवाल. So Sir. बस ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो देखो। और आप परमानेंट निवासी बने रहें जी। पाताल लोक के। Yes. Thank you. And we see you in third. So Yes. you have a sequel to look I forward just to. hope. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you so much. Thank you so much. This was lovely. Thank you.